Assalamu alaikum, everyone. With yet another session, we are live, and today we have a very special guest. She is Iman Jamil from Peshawar, and she is working for human rights, especially for children's rights, for women's rights, and for transgender rights. And she's very special to me because she's working for a cause which is very, very dear to me. And I hope that we'll be able to learn from her today and so let's welcome her without any further ado. So, Assalamu alaikum, Iman. How are you? Walaikum assalam. I'm perfectly fine. How about you? I'm also fine, thank you. Today, I have very interesting questions for you, and I hope that our audiences will join us and they will have some questions for you as well. So, today we will be talking about equality, how to have a more equal Pakistan. And first, we will start with a very important question. How do you define equality? What is equality? Okay, thank you very much. First of all, Abdurrahman, thank you very much for giving me the opportunity. And what is equality? Very important topic. What equality is to me, that is basically um, equal rights, equal opportunities, equal freedom, and equal distribution of resources. Hmm. Okay, so equal distribution of resources. And we say equality and we see empowered women everywhere. But when it comes to equality, so we don't see equality in reality. So, how do you think an equal society will look like? How will it be different from an unequal society? Well, definitely, when we have equal society or society with equal opportunities for everyone, so we have, more prosperity, more development, and yes, we have inclusivity and diversity promoted. Yes, that is how we can have, better society. Great. Okay, Iman, you're working in difficult areas, and in KPK, there are problems of human rights, and they are being highlighted as well. It is situation is becoming better. So हमारी audience जानना चाहेगी कि वो क्या चीज थी जिसने आपको encourage किया इस तरफ एक मुश्किल रास्ता चुनने पर यू कुड इजीली बिकम एन इम्पोर्टेंट पर्सन क्योंकि ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे काम करने वाले लोग कम हों या हाईलाइट कम हो या जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलें वो लोग कम हो तो वो बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन आपने वो आसान रास्ता चुनने के बजाय एक मुश्किल रास्ता चुना तो इसकी क्या वजह थी Well, मुश्किल रास्ता किसी ने तो चुनना है. Somebody has to choose it. राइट So there are two roads. Road not taken. Somebody has to take the road which is not taken by many. So yes, I decided to take the road and to start the journey because after me there would be many coming, and specifically girls, जो young girls हैं from merged districts, they need somebody. They need somebody to inspire them. They need somebody to pave way for them. So this was my inspiration was when I started working with youth from young girls from merged district. So I had seen a lot of talent in them. लेकिन वो बड़े मसले चूंकि closely had been working with them तो मैंने देखा था कि how they were being suffering despite the talent despite the जो उनके पास एक ambition होता था उनके पास opportunities नहीं थी और अभी भी नहीं है so that was ये बड़ा it actually helped me to do something for them. excellent letting my audience know that Iman is also an author of an internationally published book, A Prince Who Destroyed My Life, जो कि Amazon ने publish किया है recently और उसको बहुत अच्छा critical acclaim भी मिल रहा है globally. तो we would like Iman to tell us about her work कि अब तक उन्होंने किस तरह का काम किया है और किस तरह वो और क्या कोई इम्प्रूवमेंट वो देख रही हैं सोसाइटी में Thank you very much for talking about my book. So basically, A Prince Who Destroyed My Life. जब मैंने लिखा start में, the idea came to me because of a few young girls and a trans sexual child I was working with. So they would share their life stories with me.
तो फिर because I wanted to do something different and my kids would always tell me, Mama, you have to do something different which remains, for the coming generation as well. So वो मेरे kids भी बड़ा पम्प करते थे and I myself wanted to do something. तो वो जब मैंने book लिखा, I wasn't expecting कि इतना अच्छा जाएगा. But then, it got published and everybody started, reading it and liking it across the world. So I have a mentor, Professor Judy, and she actually has sent this book to her students as well in USA, and she wants to make it a part of her course in the coming semester. Wow. Also, yeah, thank you. So also, Pakistan, maybe there are people who are showing interest for translating it, and so basically, उसमें जो simple चीजें हैं, कोई इतनी वो it has a very simple theme, equality पे ही है. लेकिन उसमें वो चीजें मैंने हाईलाइट किया है जो मिथ्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर ट्रेडिशन है, जिसमें जो एंटी फेमिनिस्ट्स हैं. तो वो तमाम चीजों की उन वैल्यूज की, मैं कल्चरल वैल्यूज की मैंने बात की है जो एंटी फेमिनिस्ट है. एंड आई आइडेंटिफाइड दैट. और उसमें पेरेंट्स का रोल, इसमें टीचर्स का रोल, कि हाउ एक्चुअली एंड एज अ सोसाइटी वी आर प्रमोटिंग पेट्रियार्कल सिस्टम टुगेदर. So वो छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट किया and people actually started relating themselves to the story. And there are people जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां, I shared it with them and they loved it. They have given me their reviews and they said these, everybody says this is my story. नेपाल से मुझे मैसेज आते हैं कि this is our story. And India से मुझे मैसेज आते हैं this is our story. The book is about our girls because these are global issues. My point is Yes. कि जो इक्वालिटी की या इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, या जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, दीज आर ग्लोबल इश्यूज. सो दैट इज हाउ इट इज. ओके, ग्रेट. अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस होती है और उस पर बात होती है कि हम खौफजदा हैं एक इक्वल सोसाइटी से, कि कहीं ऐसा हुआ तो कहीं, मतलब हम उसको रिलेट करते हैं विद द वेस्टर्न सोसाइटी. तो हाउ डू यू थिंक इक्वालिटी इज अ नीड, और इससे हम मतलब बेलगाम नहीं हो जाएंगे और हमारा मुआशरा एक मादर पिदर आजाद मुआशरा नहीं बन जाएगा? तो जो हमारे जो खौफ हैं और रिजर्वेशंस हैं हमारी सोसाइटी के, तो इस खौफ को आप कैसे दूर करेंगे ईमान? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की या लोगों को उनके राइट्स देने की, तो फिर ये बात फिर उसको रिलेट किया जाता है विद द वेस्टर्न सोसाइटी. So how do you think it's unfair to relate it with other things, cultural things? Yes, it is very unfair to relate it to Western culture, क्योंकि equality comes from Islam. ये चीजें हमने अपने मजहब से सीखी हैं. And then equality is एक ऐसी चीज है which is need, एक need है हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट की need है. We have to have equal opportunities for everybody, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक्स में हो या पॉलिटिकल राइट्स हो या हमारे सोशल राइट्स हो या कहीं एजुकेशन में हो अपॉर्चुनिटीज हो, वट एवर. सो जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी, जितने भी हमारे डिप्रेशन के इश्यूज हैं या इसके बाद बेरोजगारी के इश्यूज हैं या उससे जन्म लेने वाले जो मसले हैं, क्योंकि वो बहुत सीरियस मसले, गंभीर मसले हैं, वो सिंपल नहीं है. हमारी यूथ जो है वो जा रही है टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, टुवर्ड्स इंटॉलरेंस. तो ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है. और ये किस चीज के साथ लिंक्ड है? ये इनइक्वालिटी के साथ लिंक्ड है. जब इक्वालिटी आएगी, बैलेंस आएगा, एक बैलेंस सोसाइटी होगी वेयर एवरीबॉडी इज गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स, फ्रीडम उनके पास इक्वल है. जस्टिस आएगा तो डेफिनेटली एक सिस्टम बनेगा जहां पे अकाउंटेबिलिटी होगी. सो नॉट जिस तरह खुलेआम लोग ज्यादतियां करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, करप्शन करते हैं, ये कम हो जाएंगी. सो दैट इज हाउ इट इज अ नीड ऑफ एवरी सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कल्चर और रिलीजन. गुड. ओके, एक क्वेश्चन और है आपसे. आपका एक काम है कि यू री राइटिंग द वेरी पॉपुलर स्टोरीज, फोक टेल्स, या जो डिज्नी की जो स्टोरीज हैं या मूवीज हैं, उनके स्टोरी लाइन को आप चेंज कर रही हैं, यू आर री राइटिंग देम. सो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपको क्यों ये जरूरत पेश आई कि आप इन स्टोरीज को री राइट करें. वेल देखिए, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, तो मैं जो पढ़ती थी, किताबें पढ़ाती थी, या जस्ट टीचर मैं थी स्टार्ट में, इनिशियली आई वाज अ टीचर. तो जो मैं पढ़ाती थी बच्चों को, आई कुड सी कि इट वाजंट ब्रिंगिंग एनी चेंज, और एक क्रिटिकल लेंस से मैं वो स्टडी करती. तो मुझे लगता था आई नीड टू डू समथिंग. तो फिर क्वाइट रिसेंटली, नॉट वेरी लॉन्ग, ईयर अगो, 1 साल पहले या 2 साल पहले, द आइडिया केम टू मी ऑफ री राइटिंग द फोक टेल्स.
तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था पश्तो फॉकटेल से, क्योंकि हमारी मदर्स कहानियां सुनाती है रात को सोने से पहले जब हम बच्चे होते थे, तो उसमें हमेशा औरत कमजोर होती थी। तो मैं हमेशा बचपन से बल्कि मैं सोचती थी कि वाई फीमेल को बर्तन धोती है या बाई की। डेफिनेटली दिस इज, आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग बैड, बट ये जेंडर रोल्स, ये जो चीजें हैं वो एक जेंडर रोल टिपिकल, जो स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स हैं, इनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ कि इट इज जो होम चोर्स है, इट्स लाइक लाइफ स्किल, एवरीबॉडी नीड्स टू लर्न, ये जेंडर फ्री है। अब्दुल रहमान नीड्स टू लर्न, आई नीड टू लर्न, सो एनीबॉडी हैज टू डू इट। तो वो मेरे माइंड में था। तो फिर जब पश्तो फॉकटेल मैंने रीराइट की, वो इतना पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ कि नॉट एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू दोस folk tales, लेकिन जब मैंने सिंड्रेला को रीराइट किया, एंड ऑल्सो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, जिसको मैंने नाम दिया था चेस्टनट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, सेलिब्रेशन ऑफ ऑल कलर्स, ब्लैक ब्राउन, तो वो बहुत अच्छी गई। एंड आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस में उस पर रिसर्च किया था एक लड़की ने, मिया मिया, हर नेम इज मिया। उसने इस पर रिसर्च भी किया, यूएस एंड पाकिस्तान दोनों का मिलके, और पाकिस्तानी लड़कियों के दरा आदम खेल में बच्चे हैं, उन्होंने रीराइट करके दोबारा, आई असाइन देम दिस टास्क टू रीराइट सम, एंड दे केम अप विद वेरी इम्पैक्टफुल स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जो खुद से वो रिलेट करती थी, एंड दे वर शोइंग देमसेल्व्स एज कैपेबल ऑफ, फीमेल्स और गर्ल्स, यंग गर्ल्स बीइंग कैपेबल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड। सो और पीस प्रमोशन में उनका जो रोल वो दिखा रही थी, साथ साथ में वो नेगोशिएशन स्किल्स पे बात कर रही थी कि हमारे जो जिरगा सिस्टम होता है इट्स ऑलवेज मेल्स, तो वो लिखती थी कि हम वी फीमेल्स कैन आल्सो प्ले रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट वाज वेरी impactful. I'm still working on more cocktails as well, so let's see what happens, but I'm getting very positive response from readers across the world. एक्सेलेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुए कि inclusion of different religions, inclusions of different colors, inclusion of people from different backgrounds, इसको सामने रखते हुए हम कहाँ खड़े हैं? हमारा क्लासरूम कहाँ है? हमारी सोसाइटी कहाँ है? हम लोगों को जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको कितना इंक्लूड कर पा रहे हैं? और इसमें हमारा एजुकेशन, बिकॉज यू वर्किंग डायरेक्टली with the education sector, maybe I'm really interested in how teachers and trainers can play their role in changing the society. तो आप क्या देखती हैं कि हम इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ खड़े हैं? Well, I'm very positive. मेरा रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव इसलिए होगा कि आई एम सीइंग कि पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, पहले ये टर्म्स नहीं थे, बट नाउअडेज वी आर लिस्टिंग अ लॉट ऑफ इंक्लूसिविटी या इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, इन पॉलिटिक्स, इन तो क्या ये सिर्फ बातें ही हैं या कोई प्रैक्टिस भी हो रही है? Yes, so I believe कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, क्योंकि बातें स्टार्ट होती है तो प्रैक्टिस भी साथ साथ कुछ ना कुछ होता है, बट द चेंज इज कमिंग एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। हर प्रोजेक्ट में यू सी कि डोनर भी आपको देता है, सो दिस इज अ प्री रिक्विजिशन कि आपको इंक्लूसिव उसको बनाना है, आपने ट्रांस कम्युनिटी का मेंबर लेना है, आपने माइनॉरिटीज का मेंबर लेना है, आपने डिफरेंटली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सपोर्ट करना है। ऑल्सो इन एजुकेशन टीचर्स हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, ट्रेनर्स ट्रेन कर रहे हैं इन्हीं चीजों पे टीचर्स को, साथ में उनको जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होती हैं कि हाउ दे कैन मेक देयर लेसन प्लान और देयर टीचिंग मोर इंक्लूसिव। तो हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आई एम सर्टन फ्यू इयर्स में वी वुड हैव मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, and inshallah Pakistan would be more prosperous and developed. इंशाल्लाह। अब जो हम डायरेक्ट जो हमारी इम्पैक्ट वाली बात है, जो प्रैक्टिस की बात है, उस पर आते हैं कि व्हाट डू यू रिकमेंड द टीचर्स एंड ट्रेनर्स टू स्टार्ट डूइंग कि वो उनके जो स्पेसेस हैं जिसपे उनको अथॉरिटी और कंट्रोल और पावर हासिल है, वो स्पेसेस ज्यादा इंक्लूसिव हो जाएं। मतलब एक क्लासरूम की बात करते हैं, हमारे क्लासरूम में वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम? अगर इंक्लूजन नहीं है, अगर है तो उसको मजीद कैसे, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आप रेकमेंड करेंगे टीचर्स को कि जिससे वो अपने क्लासरूम्स को ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा सपोर्टिव और ज्यादा डाइवर्स भी बना सकें? जी बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस। अब जब एजुकेशन में इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होंगी तो बाकी जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, क्योंकि एजुकेशन बेस है, वहां से लोग जाते हैं। सो अगर टीचर्स ट्रेन करेंगी जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं,
वो जो इंजीनियर्स बनने वाले, जो पॉलिटिक्स में जाने वाले, जो पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हैं, वो CSPs ऑफिसर्स बनने वाले हैं, दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ टीचिंग, वो वहीं से गुजरते, टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, ट्रेनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो टीचर्स को ट्रेन करें, टीचर्स कैस्केड करें फर्दर, कि अपनी क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाए, अपने हर इवन के वट एवर दे डिलीवर इन द क्लास, वो छोटा सा एक लेसन भी हो तो उसको इतना इंक्लूसिव बनाए कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स है, हाउएवर आई वुड डेफिनेटली से कि कंडीशनड है ऑन सर्टन कुछ हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इस पे कंडीशनल है। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की, I mean, if you have more than 50 or more than 60 students in one classroom, so then उसको inclusive बनाना for a teacher is very challenging. Besides this, कि आपके number of students limited हो, जो इतने हो कि teacher की capacity में हो and she makes a lesson inclusive. So then she definitely or he definitely has to try his best to make his lesson more inclusive through जो भी वो learning करती है from the trainers and the experts. So she or he has to incorporate that. Right. So we have to try to include all the sections of the society. अगर एक बच्चा एक minority से ताल्लुक रखता है, for example एक बच्चा अगर Christian है, या एक बच्चा है जो एक different language बोलता है बाकी classrooms के बच्चों के मुकाबले में, तो वो भी उतना ही included feel करे, उतना ही supported feel करे, उतना ही equal part of that class या that space feel करे। तो इसके लिए हम जैसे आपने कहा कि वी हैव टू ट्राई हार्ड, बट लेकिन रिसोर्सेज भी ऑफ कोर्स बहुत मैटर करते हैं। टीचर विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट अगर अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं उनके बिहेवियर्स में या उनके एटीट्यूड्स में आप क्या डिफरेंस देखती हैं आफ्टर योर वर्क, और कहाँ मतलब आर यू होपफुल अबाउट थिंग्स उस सेक्टर में जहां आप काम कर रही हैं? Well, I'm always optimistic and I'm very hopeful because change is always a slow process, but this is a process, you know. Change slow होता है, but change is always coming. जैसे मैं आज भी मेरी मीटिंग हुई थी with an MPA of Khyber Agency and I'm meeting all the stakeholders जो भी खैबर में या merged districts में काम करते हैं, met a additional district जो additional deputy commissioner से मेरी मीटिंग हुई थी. So we all were on the same page कि जो merged districts है after the merger, तो वहां पे काफी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं. Although we all agreed कि चेंजेस जो है वो स्लो है, but there is a change, एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया. People have started getting वो अवेयरनेस उनको आ रही है कि what is politics, वो आईडी कार्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी आइडेंटिटी जो स्पेसिफिकली जिसको फीमेल आईडी कार्ड, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत हम बात करते हैं, तो वो फीमेल की पहले नहीं बनती थी. बहुत कम फीमेल्स के पास आईडी कार्ड है अभी. मेनी एनजीओज एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दीज आईडी कार्ड्स ऑफ फीमेल्स और इनकरेज कर रही हैं. सो इससे अवेयरनेस आ रही है. प्लस इससे क्या आ रहा है कि बहुत ज्यादा वो समझने लगे हैं पॉलिटिक्स को, उनके रोल को, how can they play a role in the development of Pakistan. So ये चीजें very positive, these are very positive things and I'm certain कि कुछ ही सालों में even the ट्राइबल एरियाज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह इक्वल जैसे हमारे सेटल्ड एरियाज हैं उनके मुकाबले में एक साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह. एक्सेलेंट. ओके, एक और बहुत पॉपुलर टर्म जो कि बोली जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, मैं चाहता हूँ कि उस टर्म को भी हम इस्तेमाल करें, और बहुत सारे लोगों के कुछ कंफ्यूजन्स हैं या कुछ उनके क्वेश्चंस हैं अबाउट दैट टर्म, उसको भी एड्रेस करेंगे. और वो टर्म है फेमिनिज्म. और इसको मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रोसली मिसअंडरस्टूड टर्म. और तो व्हाट डू यू थिंक, first of all, where do you stand? Do you identify as a feminist? Or if you do, what do you think feminism is? और फिर क्या feminism और equality, diversity और inclusion के नारे में feminism कहाँ stand करता है? Okay, so I am a proud feminist and I proudly say I am a feminist. अब feminism क्या है? Many people misinterpret it कि अच्छा ये western culture को लेके आना that is feminism, या
दे लिंक इट टू वायलेशन या अपने कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करना, डिस्ग्रेस करना. Many people take it in this regard या इस terms में लेते हैं, but basically feminism has nothing to do with this, these things. Feminism आपके कल्चर के बाउंड्री के अंदर रह के अपने लिए अपने इक्वल राइट्स की बात करना. अब इक्वल राइट्स भी इट्स अगेन, कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल समझते हैं कि इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए. तो आई वुड से कि इक्वल राइट्स यही है कि बेसिकली जो मेल है, फीमेल है या ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर है, तो हम सब जो है इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं. वी अगर कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए रिलीजन्स की बाउंड्री के अंदर अंदर हम जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वी हैव राइट टू डू, बिकॉज लाइफ इज जस्ट फॉर वंस. उसको फिर हम अगर इन चीजों के जो जिनको हम कहते हैं कि जो पेट्रियार्कल सेटअप या वो नॉर्म्स हैं जो एंटी फेमिनिस्ट है, जो औरतों को, देयर आर मेनी एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू गिव बेसिकली. सो जैसे हमारे पहले होता था, जैसे औरतें जो उनको ये समझा जाता था कि वो सिर्फ बर्तन धो सकती हैं या घर के काम कर सकती हैं, उनको वही करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलती थी. अब हम देख रहे हैं कि औरतें जॉब्स कर रही है, मैनेजरियल पोजीशंस पे आ रही हैं, लीडरशिप की पोजीशंस पे आ रही है और बड़े अच्छे से कर रही है अराउंड द वर्ल्ड. सो दिस इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी इशू, पूरी दुनिया में औरतें सामने आ रही हैं, दे डूइंग रियली ग्रेट. तो ये पहले नहीं था, बट देन a change came in the west. वो उनके जो वेस्ट में था, they have gone all through these things, acceptance आ गई कि जी औरतें भी कर सकती हैं. लेकिन अब हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो हमारी औरतों को ये नहीं कि कल्चर से निकल के, रिस्पेक्टिंग द कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं उसी को रिस्पेक्ट करके हम आगे जाएं, करियर्स बनाएं, भी करियर ओरिएंटेड. वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ प्रिंस who is going to help us, save us from all the hurdles and the जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं. सो ये प्रिंस नहीं करेगा, ये हम सब और फीमेल्स आर ऑल प्रिंसेसेस. तमाम, आई एम अ प्रिंसेस माई सेल्फ, इस तरह बाकी जितनी भी फीमेल्स होती है तमाम शहजादियां हैं, लड़कियां. तो वो खुद इस काबिल हो, हिम्मत करें. इसी तरह जो मदर्स कहानियां सुनाती हैं, नानियां, तो वो अपनी औरतों को, लड़कियों को उस तरह से मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि लड़कियां बहुत ब्रेव होती हैं, वो खुद के लिए स्टेप ले सकती हैं. सो दैट इज हाउ फेमिनिज्म इज फॉर मी, कि जहाँ पे मेरे जो मर्द हैं उनकी तरह मेरे भी राइट्स हों और कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए. ओके, ठीक है. अब जितने भी प्रिंस सुन रहे हैं इस वक्त, वो क्या उनको ये लगना चाहिए कि उनका जो प्रिंस का टाइटल है वो कहीं छिन जाएगा अगर प्रिंसेसेस ने उनसे इक्वालिटी मांगी? और दूसरा ये कि पेरेंट्स जो हैं उनका क्या रोल हो सकता है? पेरेंट्स कैसे ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, शुरू से वो कैसे बच्चों में पैदा कर सकते हैं? जी, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो प्रिंस, जितने भी प्रिंस है दुनिया में, अब वो परेशान हो जाएंगे. तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल हैव समबडी विद देम. इनके साथ साथ चलेंगे, टुगेदर वी विल गो एंड टुगेदर विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. तो पहले उन पे अकेले बोझ था, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते थे, और हम देख रहे हैं विच इज बीइंग प्रूवन थ्रू रिसर्च कि मर्दों पे बहुत डिप्रेशन, ज्यादा मर्द जाते थे, सुसाइड रेट मर्दों में हाई होती थी. क्यों? इकोनॉमिकल बर्डन था उन पे. घर का खर्चा चलाना सिर्फ मर्द करता था पहले जमाने में, वी हैव सीन इट. और वो डिप्रेशन में चला जाता था अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई भी मुश्किल आ जाती जिंदगी में फाइनेंशियल लिहाज से. इसी तरह बाकी जितने भी मसले थे, फैसला करना, अगर वो फैसला गलत साबित हो जाता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द लेता, तो मर्द खुद को फिर ब्लेम करता. अब औरतें उनके साथ आ जाएंगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी. तो मर्दों को उस तरह से हर्ट, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी जैसे पहले करते थे. अब एक साथ मिल के चलेंगे. सो नथिंग टू वरी. एंड आपके क्वेश्चन का दूसरा जो हिस्सा था, विच इज अबाउट पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक की रोल है पेरेंट्स का, क्योंकि आप अपने बच्चों को जिस तरह से सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, उसकी तरबियत कैसे कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सन्स आर देयर, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि you have to respect females and they ask me questions. अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के लिए लेके जाती हूँ, so they say ममा यहाँ पे मेल ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स नहीं है, क्यों? गर्ल्स कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स. and I tell them they can play sports, but you have to bring the change, you have to include them when you grow up. So give them the opportunities. and many people like you जो इस तरह सोचते हैं, critical thinking,
ये अपने बच्चों में पैदा करें। स्पेसिफिकली अपने लड़कों की तरबियत इस तरह से करें कि वो फ्यूचर में जो लड़कियां बाहर निकलती हैं उनके लिए हर्डल्स प्रॉब्लम ना करें, उनके लिए सपोर्ट करें। दे सपोर्ट देम, सपोर्ट बने उनका, उनको घूरे ना, उनको हरास ना करें, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें लड़कियों को, और मिल के चले। ऑफिस में जो काम कर रही है लड़कियां लड़के साथ, तो ये ना कहे कि शी इज अ फीमेल, उस पे उसकी ब्यूटी पे बात ना करें, उसके इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करें, उसको एज अ वर्कर ले, एज एन एम्प्लॉई ले, या एज अ कुलीग ले। सो दीज आर द थिंग्स कि हमें अपनी ज्यादा पेरेंट्स ने जो तरबियत अच्छी करनी है वो लड़कों की ज्यादा। आई ऑलवेज एम्फेसाइज इट एंड ऑलवेज से इट कि लड़कों की तरबियत पे ज्यादा काम करें। मोस्टली इसके ऑपोजिट होता है। इट डज नॉट मीन कि मैं लड़कियों की तरबियत की बात नहीं करी, दैट इज अ डेफिनेट थिंग। सो उसमें भी इंक्लूसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। लड़का लड़की दोनों को एक तरह से तरबियत करिए, ना कहे कि लड़का बाहर खेल रहे, खेलने दो, उसको मत समझो, ये भी छोटा है, एंड देन फोकस नहीं दिया जाता। व्हेन ही ग्रोस अप, तो वो लड़कियों की मोस्टली वी हैव सीन छोटे छोटे एज में लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट बीइंग टॉट। तो ये पेरेंट्स का एक की रोल है, पेरेंट्स हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो चेंज आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो तरबियत गाह होती है पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की होती है। इट्स नॉट जस्ट मदर। अगेन अ वेरी जो कंट्रोवर्शियल बात होती है कि माँ की गोद, जैसे मैं एक अब्दुल रहमान, इफ यू कुड करेक्ट मी, माँ की गोद पहली दर्स पहली का है, पहली दर्स माँ का। और बाप की। सो इट इज नॉट जस्ट मदर हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीजें हैं कि जो एंटी फेमिनिस्ट हैं कि सिर्फ औरत पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल डाल दी गई है। सो जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ हैव टू टेक द, क्योंकि एक नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना साइकिल की दो पहिए हैं, मियाँ बीवी, सो इट इज लाइक दिस, बोथ हैव टू स्ट्रगल टुगेदर, और दोनों ने अपना रोल प्ले करना है, तो तब जाके हमारे बच्चे बहुत चेंज्ड माइंड के साथ और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। गुड। ओके, अब दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्क प्लेस पर हरासमेंट की आपने बात की, तो इस सिलसिले में आप जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं, व्हाट डू यू थिंक, कितनी प्रोग्रेस है, कितनी अवेयरनेस है इस पे, कितनी ट्रेनिंग हो रही है और कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, और उससे क्या चेंज आ रहा है? क्या लड़कियां खुद को सेफ फील करती हैं वर्क प्लेसेस पर? और दूसरा, चलें, आई बी आस्किंग यू द सेकंड क्वेश्चन लेटर, पहले इस पे बात कर लेते यस, वर्कप्लेस हरासमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू, और इस पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन कि जिस तरह यंग लड़कियां, बिकॉज जब आप व्हेन यू ग्रो अप, आप चैलेंजेस को, हर लड़की चैलेंजेस को उस तरह से नहीं फेस कर पाती। सी, अगर एक लड़की स्ट्रांग है, वो चैलेंजेस को फेस करे तो हरास होती जा रही है, होती जा रही, शी स्टेज क्वाइट। क्या होता है कि द हरासर एक्चुअली, दिस इज एन एनकरेजमेंट ऑफ द हरासर, बिकॉज वो जो लड़की है शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक साइलेंट रोल है उसका उस हरासमेंट को प्रमोट करने में, बिकॉज शी इज नॉट स्पीकिंग अप। अब जो पॉलिसीज हैं, तो आपको भी पता है, यू ऑलरेडी नो कि हर डिपार्टमेंट में पॉलिसीज बन चुकी हैं एंटी हरासमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन में एंटी हरासमेंट की पॉलिसीज हैं, लेकिन वो पॉलिसीज समझता कोई नहीं है। लड़कियां खुद उसको नहीं समझ पा रही, जो जो कि ट्रेनिंग जिस पे होनी चाहिए, मैं एम्फेसाइज करूंगी। एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, फर्स्ट यू नीड टू रीड द एंटी हरासमेंट पॉलिसीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसी तरह जब आपके पास वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सो यू कैन स्पीक अबाउट इट, देन देयर इज नथिंग टू फियर। लेकिन व्हाट वी डू एक्चुअली, व्हिच इज आई वुड really discourage, and I would really which I'm very much disappointed in, कि हम लड़कियां जब जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, we even do not ask them कि आपकी कोई इस तरह की पॉलिसी है। even if we have a signature on that, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में वो सिग्नेचर भी आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले ले, तो we don't read it and we don't try to understand that. So I would encourage everybody to read that policies. तो वो अगर आप समझें और उस पर स्टैंड लें, नॉट जस्ट रीडिंग, टेक अ स्टैंड ऑन इट, बिकॉज आपको फिर कोर्ट भी सपोर्ट करेगा। सो समबडी हैज टू स्पीक। जैसे मी टू का एक स्टार्ट हुआ था, एक मूवमेंट बहुत साल पहले। सो व्हेन इट स्टार्टेड इनिशियली, समबडी व्हेन जो इनिशिएट कर रहा था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर हर। तो ये एक मूवमेंट जब स्टार्ट होता है इनिशियली बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आने वाली लड़कियों के लिए थिंग्स बिकम इजियर। सो व्हाट वी नीड टू डू,
एक चीज जो हम लड़कियां करती हैं, वी हैव टू सिंग ऑफ द गर्ल्स कमिंग आफ्टर अस, एंड उनके लिए हमने रास्ते साफ करने हैं। तो आज अगर जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं रास्ते से गुजरती हूँ, लोग मुझे घूर रहे हैं वट, सो कल को जो मेरी बेटी आएगी या किसी और की बेटी आएगी तो उसको नहीं घूरेंगे, क्योंकि बात ही हो जाएंगे कि जी लड़कियां जॉब के लिए निकलती है सुबह से, वेर एवरीबडी गेट्स आउट ऑन जॉब। सो ये चेंज हम लाएंगे। सो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, शी ऑलवेज टेल्स मी कि अब पेशावर में भी, you know, when we are here, so we need to you know, roam around and tell people that we are females and we have to go out shopping and stuff like that, तो उनको आदी करवाएं। एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, तीसरे दिन खुद ही आदी हो जाएंगे। so these are the things कि हमने इनको चेंज लाना है, you know, together we will bring the change इंशाल्लाह। ओके, अब एक मुश्किल सवाल, और वो ये है कि बहुत सारे लोग जो कि जिनके लिए ये आइडियाज नए हैं ईमान, वो ये समझते हैं कि अगर औरतें मतलब इक्वालिटी डिमांड करेंगी और वो बाहर निकलेंगी और वो जॉब्स करेंगी, तो उनकी जो बाकी ड्यूटीज हैं, जो मदरली ड्यूटीज या फैमिली ड्यूटीज या मतलब एक फाउंडेशन ऑफ अ फैमिली जो हमारी कल्चर में कंसिडर किया जाता है औरत को, वो उसके वो रोल्स अफेक्ट होंगे। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन कि वो ये कहते हैं कि औरत का जो असल रोल था, कल्चरल रोल और जो ट्रेडिशनल रोल हमारी सोसाइटी ने उसके लिए आइडेंटिफाई किया है, तो वो अफेक्ट होगा। सो व्हाट डू यू से? ओके, सो देखिए, औरत का रोल जो है, ये रोल औरत को जो मतलब कल्चर ने दिया है, आपने दिया है, हमने दिया है कि औरत घर को संभालेगी। देयर इज नो डिनाई इन द फैक्ट कि हम औरतें अच्छे से संभाल सकती हैं, लेकिन क्या मर्द को नहीं संभालना चाहिए साथ साथ में? क्या मर्द को हमारी हेल्प नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ औरत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बर्तन धोने की, खाना पकाने की? क्या मर्द ना ले? देयर इज नो डिनायल कि हम करते हैं, फिर भी हम फीमेल्स बोली भी तब भी हम करते हैं। ऑल ऑफ अस आर डूइंग इट। हम जॉब से आते हैं, मर्द जॉब से आता है। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हर एक की लाइफ में आप देख रहे होंगे। एक मर्द जॉब से आता है, एकदम वो कमरे में चला कि दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके वो सो जाता है कि मैं थक गया हूँ और खाना ले आओ। औरत जॉब से उसी वक्त वही, और उसकी बीवी भी जॉब से आई होगी, एंड शी वुड गो टू द किचन, वो खाना गर्म करके आएगी, हस्बैंड के सामने, बच्चों के सामने रखेगी, उसका मूड अच्छा होगा, खुशगवार होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि उसके गुस्सा ना करे, शाउट ना करे, क्योंकि उसको कोई हक ही नहीं है, क्योंकि वो तो तकती ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि शी इज अ फीमेल, शी इज आल्सो टायर्ड। इसकी भी ऑफिस में हजारों लांझे हुए होंगे, साइकोलॉजिकली मे बी उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, शी नीड्स टाइम। सो ये चीजें कि वुमेन शुड बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग्स टू। they also need time, they also need rest, they also need time for themselves। कभी कभी अपने लिए भी वो टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और उनको टाइम देना चाहिए कि लिव फॉर योर सेल्फ। ना हो जाओ एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम लो। दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। ये नहीं है कि इन चीजों की वजह से औरत अपना रोल या अपना एक किरदार जो घर संभालने का, वो कभी नहीं छोड़ेगी। वो उसमें कुदरती है, अल्लाह पाक ने डाला हुआ है, शी वुड स्टिल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन व्हाट वुड हैपन कि अगर आप उनको ये चीजें नहीं देते, उनको बाउंड करके रखते हो, तो वो मेंटली, साइकोलॉजिकली फ्रेश नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी। तो क्या होगा, आपके घर का एनवायरमेंट पूरा का पूरा इफेक्ट होगा। So what my point is कि treat her as a human being, give her equal rights at home like man। ठीक है, वो आपकी वो खुशी खुशी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, वो बच्चों की तरबियत से कभी इंकार नहीं करेगी। शी इज अ मदर, शी हैज ऑल दिस अफेक्शन एंड लव, वो अल्लाह ने उनमें डाली हुई है। राइट, ओके, ग्रेट, एक्सेलेंट। अब बात करते हैं आपकी जो अभी सिलेक्शन हुई है फॉर द विमेन फॉर पीस अवार्ड, टॉप 10, वन ऑफ द टॉप 10 सिलेक्टीज। तो all right, so please tell us about that. Yes, thank you very much for asking about that. So because मैं काफी अर्से से काम कर रही हूँ, एंड स्पेसिफिकली एक चैलेंजिंग एरियाज में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। सो वहाँ पे काम करने की वजह से, और इसके अलावा एजुकेशन में काम करने की वजह से, और बाकी भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं यूथ के साथ भी इंगेज हूँ। सो वुमेन बिल्डिंग पीस अवार्ड यूएस में हुआ था, उसमें नॉमिनेशन मेरी हुई है फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे साथ 9 more females, another one is Pakistani, 2 are Pakistanis, so proud for moment for Pakistanis। तो 2 पाकिस्तानी है, बाकी हमारे पास 8 जो है वो बाकी डिफरेंट कंट्रीज के हैं।
सो अराउंड द ग्लोब सिलेक्शन हुई है. अब इनमें से अवार्ड एक को जाएगा, बट द रिकग्निशन, एवरी वुमन इज गोइंग टू गेट द रिकग्निशन. प्लस इनको जो लिंकेजेस डेवलप होंगे और इनको सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम यूएसआईपी एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इनके काम को everybody would come to know about their work. So it's an honor for me to be representing Pakistan on a global platform. Excellent. Okay, great. एक और, चूंकि हमारा जो मकसद है वो है to spread awareness and to talk about the issues जो कि थोड़े controversial भी हो सकते हैं. एक कॉमन जो सोच देखने में आती है वो ये कि आप पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सोसाइटी या ट्रेडिशंस के खिलाफ बात करें एंड देन यू विल बी अप्रिशिएटेड अब्रॉड. बहुत सारे नाम हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया एंड दे गॉट recognized and appreciated. तो how do you respond to that, Iman? Well, I certainly do not agree to it, क्योंकि जब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नॉवल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मेरे नॉवल में देर इज नथिंग अगेंस्ट मेल, देर इज नथिंग अगेंस्ट आवर कल्चर. आप अगर उसको पढ़ेंगे भी तो मेल्स को मैंने कोई वॉयलेंस नहीं शो किया, ना उनको मैंने एग्रेसिव शो किया, ना मैं उसमें कोई फिजिकल वॉयलेंस अपने नॉवल में कि मारता पीटता है. नो, माई कैरेक्टर इन माई नॉवल, द मैन, he is very nice, he's very kind, and he's very understanding of female rights, of female जो sensitivity है वो समझता है, उनकी नीड्स को समझता है. सो उस कैरेक्टर में चूंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ा अच्छा सा जेंटलमैन है, लेकिन उसमें जो इश्यूज हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मेरी नॉवल को चूंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, तो वो उसमें हर इश्यू को मैंने ग्लोबल एस्पेक्ट से दिखाया है कि ये इश्यू अगर पाकिस्तान में है तो यूएस में इससे भी ज्यादा है, इंडिया में इससे भी ज्यादा है, नेपाल में है, चाइना में है, जापान में है, एंड आई हैव लिटरली गिवन रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. तो वो ग्लोबली मैंने उसको इश्यू को हाईलाइट किया है कि जी वमेन जो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी है वो पूरी दुनिया में है. अगर ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल चाइल्ड को अबेंडन किया जाता है तो दैट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी इश्यू, दैट इज अ ग्लोबल इश्यू. सो उसको अगर रिकग्निशन मिली है, आप उसको अगर कोई भी पढ़ेगा, सो देयर इज नथिंग अगेंस्ट आवर कल्चर. So yeah, I do not agree to that. Excellent. आपके नॉवल में भी एक ट्रांससेक्सुअल जो बच्चा है उसका जिक्र है, और ट्रांस राइट्स पर पाकिस्तान में अभी बहुत काम हो रहा है. लेकिन वेयर डू यू थिंक वी स्टैंड, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं. कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जिनको हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना होगा. गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रही है उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो बहुत अच्छे समटाइम्स इस तरह के इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं या इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें ट्रांस जो कम्युनिटी है उनको बजाय कि उनको एक ही पेशे की तरफ धकेला जाए माशरे की तरफ से, उनको मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर आप देख रहे हैं. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आप एज एन इंडिविजुअल कैसे काम कर रही हैं फॉर ट्रांस राइट्स, और क्या चेंज आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती हूँ और मेरे रिस्पॉन्सेज भी ऑप्टिमिस्टिक ही होते हैं. सो पाकिस्तान में भी जैसे ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज हैं तो वो ग्लोबल इश्यूज हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं. सो पाकिस्तान में गवर्नमेंट इज रियली बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, केपी गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे केपी गवर्नमेंट का ज्यादा पता है, बीन वर्किंग क्लोजली विद देम, कि बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है. साथ में मैं सिविल सोसाइटीज को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि वर्किंग टूवर्ड्स इट, क्योंकि मेरी नजर में जब कोई इश्यू उजागर होता है, आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप इश्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो काम उस पर स्टार्ट शुरू में डिफिकल्टी होती है, लेकिन काम इनिशिएट हो जाता है. और जब काम इनिशिएट हो जाता है सो वो फिर चलता रहता है, इट गोज ऑन टिल वो उसका जो एंड गोल है वो हमें अचीव हो जाता है, को वट एवर चेंज वी वॉन्ट टू ब्रिंग. सो ट्रांस जेंडर के साथ काम करके, व्हेन एक्चुअली इन माय नॉवल there was a there is basically is a transsexual child that been a student I've been working with, and तो उसने मुझे कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई थी. इट इंस्पायर्ड मी. उसको बुक पे उसकी परमिशन के साथ आई इंक्लूडेड हिज स्टोरी, पार्ट ऑफ हिज स्टोरी इन माय नॉवल, कि किस तरह से उनको, अगर आप समझते हो कि एक ही फील्ड में वो दे कैन जस्ट डांस और दे कैन जस्ट डू स्टफ लाइक दैट, क्योंकि आप उनको उसी तरह ट्रेन कर रहे हो, आप उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो.
आप उनको एजुकेशन की तरफ लेके नहीं आ रहे हो। किसी इंस्टीट्यूट में आप जाएं तो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आपको 2 या 3 ट्रांस मिलेंगे, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में आप उनको इंक्लूड करोगे, अपॉर्चुनिटीज दोगे, जो कि अब इंशाल्लाह हो रही है, गवर्नमेंट इस पे काफी काम कर रही है, तो डेफिनेटली दे विल कम इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। डेफिनेटली वो इस तरह से प्रोफेशन को चूज करेंगी जहां पे आज हम बैठे हैं, या कोई भी दे कैन बिकम एसएसपी ऑफिसर, दे कैन बिकम डॉक्टर्स, दे कैन बिकम इंजीनियर्स, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो उनको तो ये कि वो पैसे कैसे कमाएंगे। एवरीबॉडी हैज टू अर्न मनी, एवरीबॉडी हैज टू अर्न लिविंग, तो वो फिर किस तरह से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू मेक दिस थिंग्स, ये चीजें समझाने की अपने बच्चों को, अपनी यूथ को। डोंट मेक फन ऑफ देम, यू कुड बी वन ऑफ देम, इट कुड बी यू, इट कुड बी मी, इट कुड बी माई सन और माई डॉटर। सो उनको अगर एम्पैथी, अगर ये हम जब फीलिंग स्टार्ट करना, हम एम्पैथाइज करना स्टार्ट कर दें, या उनको ये समझना कि आई कैन बी इन हिज शू, तो जब तक ये नहीं होगा, सिंपैथी से काम नहीं होगा कि आप उनको देख के करें, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक और इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली मुझे पता चला, फ्रेंड ऑफ माइन हु शेयर के उनके कॉलेज में, शी वाज अ टीचर, एक बच्चा आया जो कि ट्रांस जेंडर था, एंड दे वर लाइक सपोर्टिव, एक्स्ट्रा सपोर्टिव टुवर्ड्स दैट चाइल्ड, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जाहिर है एडजस्टमेंट और सपोर्ट की जरूरत होती है, तो दे डिड, लेकिन दैट चाइल्ड वाज कॉन्स्टेंटली हरास्ड बाय अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत उस टीचर के कोशिश के बावजूद उस बच्चे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और उसकी एजुकेशन बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गई इन कुछ वाकयात के बाद, और इस इट वाज बियॉन्ड हर पावर्स, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, लेकिन उस बच्चे की एजुकेशन, और इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं जहां पे अगर ट्रांस जेंडर्स या ट्रांससेक्सुअल बच्चों ने कोशिश की भी है स्टेप इन करने की टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइफ, तो उनसे वो अपॉर्चुनिटीज छीन छीन ली गई हैं, या फिर हमारे जो कॉमन रिस्पॉन्सेज हैं, जनरल रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स दैट चाइल्ड, वो इतने सपोर्टिव या इनकरेजिंग नहीं थे, जिसकी वजह से उस वापस उसी लाइफ पर उनको जाना पड़ा है। तो इट्स काइंड ऑफ सैड, व्हाट डू यू थिंक? It is very, indeed, very sad and very unfortunate of us as a society कि हमारे ही बच्चे, who are these people who would mock them, हमारे ही कौम के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, जो अब इनसे भी पूछा जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर। अकाउंटेबिलिटी जो होती है, आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हमेशा अंदर से एक आवाज आती है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एक्सपीरियंस दिस थिंग, एक आवाज आती है, एक जमीर विच इज कॉल्ड जमीर, तो वो उसको क्या जवाब देंगे हम? व्हाट विल वी से टू इट कि हमने किसी का फ्यूचर उससे छीन लिया। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिम अ डांसर और मेकिंग हिम चूज अ प्रोफेशन व्हिच इज कंसिडर्ड disgraceful, yeah, which is considered less valued in our culture. तो कौन responsible है? Me as a parent, or me as a teacher, or me as a trainer, or us as a society? We have to think of all these questions and we have to work together कि हम encourage करें ऐसे लोगों को। अगर for example somebody is differently abled या somebody is gender उनका different है हमसे, so will we not include them? I mean, that actually gives me, समझ मुझे नहीं आती कि किस तरह से हम उनको एक्सक्लूड करें। इट्स सो डिसहार्टनिंग कि किस तरह से इन बच्चों को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं एंड दे बिकम समवन कि जिनको हम बाद में रिस्पेक्ट नहीं करते। So I'm so actually emotional with this thing now. Yeah. लेकिन आपको डिसहार्टन नहीं होना, बिकॉज यू आर एट अ प्लेस वेयर वी नीड यू टू बी मोटिवेटेड एंड ऑलवेज होपफुल। So I hope Yes, that you have definitely. some good things to share as well, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ चेंज हुई होंगी because of your work. So you have some good motivation. Okay, कुछ comments भी ले लेते हैं। सबील Sure. कह रहे हैं, thank you Sabil for joining us. He's saying if equal distribution of resources, then definitely will be equal distribution of wealth. Absolutely. We have to ensure कि resources or opportunities equally distribute हो। सहर अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम सहर। ओके, राना इक़्तिदार ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ऑल राइट,
Mohammad Ahmed ne join kiya. It's good initiative, but such debates only results in minimizing the public sentiments against cruel capitalistic system of economic and indirectly favors to strengthen cruel system of politics and system of judiciary, which is based on colonial laws of 1935 and uh, police acts of 1861, 1862. How do you respond to that? इस discussion से किस तरह एक colonial judiciary system को या political system को support मिलेगी? I am unable to understand. Thank you for your question, Mohammad Ahmed. Iman, would you like to take this question? यस श्योर, क्योंकि ये जितने भी हमने डिस्कशंस किया है वो इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, वो नॉन पॉलिटिकल थे। एंड ऑल्सो क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को प्रमोट करने की बात नहीं करें, वी आर नॉट यू नो trying to favor or kind of promote any system. We are actually talking about equality, equal society की बात करें through inclusive practices इन एजुकेशन एंड अदर जो भी हमारे फील्ड्स हैं लाइफ में, तो तमाम में हम इसकी बात करें। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट ही वांट्स टू से, एंड बट आई विल डेफिनेटली I like to see more comments from him if you could actually explain that further. Thank you. Yes, please do explain, Mohammad Ahmed. Okay, Nazir साहब ने join किया है. Assalamu alaikum to Sir Abdurrahman Iman. Thank you, Nazir. Sabah Hassan. Okay, is my colleague. I'm proud of you. I want to ask her what she can plan for further highlighting issues faced in workplaces by women. Very good question. Thank you, Sabah. Yes, Iman. Yes, so her question was about workplace harassment. Yes. Yes, the workplace harassment को just as I already talked about that कि workplace harassment में we need to understand the policies कि जहाँ पे हम join करें, सबसे पहले question हमारा ये होना चाहिए कि आपकी कोई policies है कि नहीं है, the very first question. So, yes, and then if they have policies, what policies do they have? Can I see the paper? And when I see the paper, I definitely have to believe in it and actually challenge it if in case my rights are violated as a human being, as a woman specifically. अगर मेरे राइट्स वॉलेट होते हैं एज अ फीमेल, somebody is harassing me in the office, if I report it, next day, next time, he will not be able to harass someone else. So I am making it easier for the other girls. If I stay quiet and I say कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लो, तो अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो मेरे बाद आने वाले कितनी बच्चियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। शायद कोई ऐसी बच्ची बर्दाश्त ना कर पाए, जॉब छोड़ के चली जाए, उसका पूरा करियर ही हुआ हमारी वजह से, क्योंकि मैं नहीं बोली, आई स्टे क्वाइट। तो मेरी वजह से कोई लड़की हिम्मत हार के जॉब ना छोड़ ले, अपने करियर को सैक्रिफाइस ना कर ले। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप। Well, I see a very positive picture, and I see in every organization that I've worked with, I see women in very strong positions. I see women who are taking decisions and who are basically taking command and who are leading. So, I'm very hopeful, and when I talk about it, I don't even see in like in the sector that I'm working in. I don't even see that there is anything going on. Of course, I don't know much, and because yeah, so many people who are not even aware, they don't even, जब इस तरह की कोई बात होती है तो वो ये कहते हैं, I'm actually trying to represent the fraction of the society जो ये कहते हैं कहाँ है inequality, हमें तो नहीं नजर आती, औरतें तो बहुत empowered हैं, they're being given equal opportunities, jobs में they're being encouraged to apply and get, लेकिन जो issues आपने बताए कि workplace harassment, they are of course there, or they are being reported there, but now they're not being reported as much as they're being they're taking place. So yes, I completely agree with you. Punjab mein situation is much better. So where do you think how long do you think KP will take to in order for women to be more empowered there, or how do you think situation improving there? यस अब्दुर्रहमान, जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या अपने प्रोविंस की बात करें, तो स्लोली आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हम आ रहे हैं, वी आर स्टिल इन, हमारी जर्नी अभी स्टार्ट है। सो जिन चैलेंजेस से शायद आपके पेरेंट्स या आपसे पहले जो लोग थे गुजरे थे, वो लड़कियां थी जो अभी की नहीं है, पहले दौर की थी, नानियां थी या आपकी मदर्स या वट एवर, तो वो उन लोगों जो वो जनरेशन थी
वो गुजरी है इन मसलों से, हम अभी गुजर रहे हैं, वी आर जस्ट इन आवर जर्नी, ऑन आवर जर्नी। तो हमारा भी स्टार्ट हुआ है एंड वी आर फेसिंग इट, बट आई एम ग्लैड कि जर्नी स्टार्ट हो गई, ट्रेन चलने लगी है। चाहे वो ट्रेन हो, हम ट्रेन में सफर करें या रक्शे में सफर करें या वो बैलगाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं। द हैप्पीएस्ट और द पॉजिटिव थिंग इज कि सफर स्टार्ट हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता बैलगाड़ी से हम रक्शे में, और रक्शे से शायद कैब में, और कैब से शायद हम रेलगाड़ी और फिर जहाज में सफर करने लग जाए, रफ्तार हमारी तेज होने लग जाए। So I'm very positive that change is coming, and inshallah, definitely, after very few years, KP would be like Punjab. Inshallah. So you are in the right direction, you believe, but it's slow, which is a positive thing. At least we are in the right direction. Great. With the help of people like you. अच्छा, आप गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही हैं, and you're also working with some private organization. So it's like a public-private collaboration. So how supportive do you think the government officials are, or what else would you like to tell them? Because we are actually reminding them of their duties. So what do you think the government needs to work on? What should be the next thing that they need to work on? या कोई एक project जिस पे आप आजकल काम कर रही हो? Please let us know about that. जी, right now I'm working on a multi-sectorial human development initiative. Multi-sector में मैं काम कर रही हूँ, health, education, and then we have livelihood. तो काफी ज्यादा इसके सेक्टर्स है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। सो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ यू नो योर राइट्स। मैं एम्फेसाइज करूंगी, so if you know your rights, so definitely you know how to convince others and how to speak about it. But if you do not know your rights, आपको खुद नहीं पता, आपको नहीं पता किस तरह से information लेनी है, तो nobody is going to support you. So it's you have to empower yourself first. उसके बाद आप अपने rights किसी से भी ले सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो वकील हो, या चाहे वो जज हो। But first you need to understand and you need to know. So empower yourself, and then definitely you can empower the whole society. Excellent. Okay. I'm glad that we are having this discussion, क्योंकि this discussion needs to happen, और उसके बाद ये होगा कि एक awareness जो है वो आएगी society के अंदर, and things will start becoming better. और ये जो हमारा खौफ है कि ये वेस्टर्न एजेंडा है या इक्वालिटी जो है उसकी आड़ में कुछ और होने जा रहा है, ये भी किसी हद तक करेक्ट हो पाएगा। थैंक यू सो मच ईमान फॉर योर टाइम। और सबा जो है वो थैंक्स कह रही हैं, और शी राइटली सेड द साइलेंस इज आल्सो वन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। आई कंप्लीटली एग्री। ओके, द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू ईमान, कि आपको ये जो राइटिंग है, ये पावरफुल टूल जो है, इसके लिए आप कैसे इनकरेज करेंगी हमारे टीचर्स को, ट्रेनर्स को, हमारी जनरली हमारी यूथ को, कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल करके वो एक तो अपनी पहचान बना सकते हैं, नंबर वन, और दूसरा वो कैसे इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स नीड टू गेट हाईलाइटेड। अगर ये हाईलाइट नहीं होंगी तो ये करेक्ट नहीं होंगी। तो हाउ डू यू थिंक राइटिंग हैज एम्पावर्ड यू, or how would you recommend other youth to start writing? Yes, it is very important. देखिए, राइटिंग एक ऐसी चीज है जो, अब हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो जो चीज मैं लिख रही हूँ, अगर वो मैं पब्लिश कर रही हूँ, तो मैं रहती जो आने वाली दुनिया है, एवरीबडी इज रीडिंग इट, सो वी कैन ब्रिंग अ चेंज। ये एक ऐसा टूल है जिससे हम चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हम तो देखिए, चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। वो इसी चीज से आएगा कि जब आप इसे लिखना स्टार्ट करोगे, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग आप एक इनिशिएट कर रहे हो, वो आप लोगों के माइंड्स में डाल रहे हो, क्वेश्चंस डाल रहे हो, वो क्वेश्चंस करने के, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये इश्यू भी है, एंड देन यू एक्चुअली गिव देम अ फूड फॉर थॉट। तो वो उस तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड एनकरेज ऑल द यूथ, जितने भी हमारे यूथ, अगर कुछ इफ दे आर लिसनिंग, so please come into this field of writing if you have the skill। राइटिंग करें, चाहे वो आप प्रपोजल राइटिंग कर रहे हो, अपने आइडियाज के साथ आ रहे हो, चाहे आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, चाहे पोइट्री लिख रहे हो, चाहे आप फिक्शन लिख रहे हो, नॉन फिक्शन लिख रहे हो, कम अप विद दिस एंड ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली टीचर्स और करिकुलम जो डेवलपर हैं, प्लीज चेंज, अपडेट आवर करिकुलम, इसको अपडेट करें, और जो उस तरह से करें कि जो इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हमारी सोच लेके जाए और हमें हेल्प आउट कर सके। थैंक यू। Great.
यहाँ पे एक दो वाकयात जिन्होंने मुझे एज अ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, एक दो और फिर उसके बाद ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर एज वेल, जहाँ पे हमें लगता है कि इंक्लूसिविटी की और इक्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। तो देयर वाज दिस चाइल्ड इन इन माय स्कूल, जिसको बुलाया जाता था विद द नेम ऑफ, ही वाज कॉल्ड चूड़ा, because of his religion, or that, as even as a child affected me. और उसके बाद there was in college a good friend of mine who was from a minority, a religious minority. He was Ahle Tashi, and someone on his desk would write Shia Kafir. So he was a very Oh my good friend God. of mine, and and I could see him being affected by that. So when you see this thing happening around you, and when I became a part of the education sector, I still see this happening. So even after those 20 years, 25 years, I still see the same behaviors in our society, Iman. So it means that we as teachers, as trainers, have we failed, और what else do we need to do कि जो behaviors हमारे थे, एक तरह से कि हम you are the best, आपका अकीदा, आपका religion, आपकी कास्ट, आपकी नस्ल, आपका रंग सबसे बेहतर है, और आपके अलावा जो भी हैं वो सब गलत हैं, वो सब कमतर हैं, या वो गलत हैं। तो हाउ डू यू थिंक दीज थिंग्स विल चेंज, और हम क्या कर सकते हैं इसमें? Well, definitely, we have to play a role and we have to come up with ideas किसी तरीके से भी, चाहे वो writing हो, चाहे वो projects हो जो हम ऐसे ला सकते हैं, चाहे वो आपको कोई भी initiative हो, training हो, teachers training हो, awareness sessions हो, तो हमें करना है, we have to play a role. अगर आपके टाइम में होता था 20 years बाद अब भी हो रहा है, लेकिन शायद थोड़ी सी कमी उसमें आ चुकी होगी क्योंकि अब रियलाइजेशन है, उस टाइम रियलाइजेशन नहीं थी। उस टाइम हम कहते थे, हम हमारे इलाके में भी कहते थे चूड़ा और ये, और अस्तगफुरुल्लाह, आई मीन सो बैड टू यूज सच नेम्स। अब हम जब अब्रॉड जाते हैं हमें इस तरह से अनएक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो हाउ वुड वी फील? तो अगर वहां पे, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज में तो हम होंगे, इफ यू गो टू यूके, इफ यू गो टू यूएस, मुस्लिम्स तो Yes. कम है, तो ये हमारे साथ भी होगा फिर। सो इफ यू कैन नॉट चूज इट फॉर यूर सेल्फ, व्हाई टू चूज इट फॉर अदर्स? एब्सोल्युटली। जब हम मुस्लिम्स के साथ ये वेस्ट में होता है, देन वी से कि जी ये इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट जस्ट। ओके, सो यू थिंक कि हमें इन चीज़ों को बार बार रिपीट करना होगा, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना होगा, और यू थिंक कि बिहेवियर्स विल चेंज, और इसके बारे में लिखना भी होगा। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा यूथ से, स्पेशली अगर वो सुन रहे हैं, सम ऑफ देम आर हियर, और बाद में भी लोग सुनेंगे, कि राइटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली आपकी लैंग्वेज स्किल्स का हाई होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ज़बान पर अबूर नहीं भी है, तो भी आइडियाज़ आपके मैटर करते हैं। आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। असल बात है कि आप अपनी कहानी, अपनी बात किस तरह लोगों के सामने लाते हैं। चाहे आप बोल कर लाएँ, लिख कर लाएँ, और या फिर आप किसी और तरीके से आप ये शेयर करें, या आप किसी की सर्विसेज हायर करके अपनी स्टोरीज और अपनी जो आइडियाज हैं वो पब्लिश करवाएं। So in any way you have to come up, and you have to come up with the ideas that you have, and you have to share with people. So we are almost at the end of our session. आपसे एक एक घंटा जो है वो आपसे हमने लिया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई, और ये वो डिस्कशन है जिसको होते रहना चाहिए। और एक क्वेश्चन हमाद साहब ने किया, डिस्क्रिमिनेशन इज अ माइंडसेट, हाउ कैन वी चेंज दिस? तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, यस, एंड we have to, wherever we are, we have to play our role. So what would you say at the end, ईमान? अब कैसे कंक्लूड करेंगी हमारी सारी डिस्कशन को, और आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? So first of all, thank you very much one more time, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो discussions हैं, ये हमें करनी है और आगे पहुंचानी है. So what you have done is really commendable, क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर ये discussions नहीं करते, so बहुत फिर शायद रास्ता मुश्किल हो जाए. लेकिन I'll end this show with a message कि we should be very hopeful, and together we can bring a change. So we have to include everybody, and we have to include हर जेंडर को साथ लेके, हर रिलीजन के बंदे को साथ लेके, हर सेक्ट के बंदे को साथ लेके,
तब हम जब एक साथ जाएंगे तो मंजिल आसान होगी, अदरवाइज मंजिल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड अस। और इसके बाद भी जो लोग देखेंगे वो अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज ईमान, अल्लाह हाफिज एवरीवन।